Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikramul Haq, subject specialist, MPhil Applied Linguistics, and you are watching my YouTube channel, English with Ikram. Dear candidates, dear participants, dear students, dear teachers, especially who have applied for English lectureship. Today's video is going to be very much important for you, because in today's video I am going to discuss the formula for the selection of lecturer for the current posts that have been advertised by KPPSC, and then the proposed syllabus, the prescribed syllabus, the composition of paper of English lecturer. Okay, let's get started. First of all, I will discuss the formula as I have discussed already in my different videos, though you know that there were some rumors, some discussions that whether the test will be conducted or not, test hoga, nahi hoga. Once the commission decided that there will be no test, the candidates will be selected on the basis of academic record and interview. But then on the protest of many candidates, again it has been decided now that there will be tests will be conducted. And what is the formula now? What is the criteria for the selection of this lecturer post? First of all, the weightage of test. As I have discussed already, that this year, according to new formula, new selection criterion, test has the weightage, the value 45%. 45% value आपके टेस्ट की है सबके लिए. It's not only for lecturer in English, it's for all the posts, whether it's lecturer English, Islamiyat, social sciences, natural sciences, सबके लिए यही फॉर्मूला है. टेस्ट के 45% मार्क्स हैं. And then one thing that you must keep in your mind, that you have to score, you have to obtain 60% marks. Minimum criteria, minimum target that you have to keep in your mind. The minimum जो criteria आपने अपने दिमाग में रखना है, that you have to score minimum 60%. Then it depends on different subjects. हर सब्जेक्ट का फिर आपका एक अगेंस्ट जो पोस्ट हैं उनके अगेंस्ट फिर आपका अपना अलग मेरिट बनता है, लेकिन मिनिमम 60% आप ध्यान में रख लें, बिकॉज नाउ डेज देयर इज़ वेरी टफ कॉम्पिटिशन. देन अगर आपने 75% मार्क्स लिए तो फिर मैक्सिमम चांसेस हैं आपके इंटरव्यू के. फिर आपके दैट से 45% आउट ऑफ टोटल वो आपका उसमें से मेरिट बनता है. तो जब आपके जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उतने ज़्यादा आपके चांसेस ज़्यादा हैं. ज़्यादा ओवरऑल जब आपका आउट ऑफ 100 जब आपका मेरिट बनेगा तो वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे. तो मैक्सिमम आपने मार्जिन लेना है टेस्ट से. देन इंटरव्यू, व्हेन इफ़ यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं 60% प्लस 70% प्लस आपके मार्क्स होते हैं, you will definitely be called for interview. Then interview has got the weightage 25% value interview के. तो interview that's merely, you can say, not merely, maximum that is on your luck in the sense that मेहनत का अपना एग्जाम उसका रिवॉर्ड है, we can't deny. पर लक में इस ये नहीं कि आप बैठे रहें खैर जी जो होगा देखा जाएगा, just you can rely on luck. No, this is not the case. After work किया, आपने एफर्ट्स की, आप दिन रात मेहनत की, इंटरव्यू में जाके बैठते हैं, वैसे मिस हो जाते हैं, गाड़ी लेट हो जाती है, आप टाइम पे नहीं पहुंच सकते, आप थके हारे पहुंचते हैं, वहाँ जाके आप पहुंचते हैं, आप बिल्कुल आप मतलब ब्लैंक हो जाते हैं. सम टाइम इट हैपन्स दैट द फर्स्ट 2 or 3 क्वेश्चन विच आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर यू डोंट नो, एंड योर इम्प्रेशंस दैट यू लूज डाउन, आप इम्प्रेशन सारा लूज जाते हैं, इमेज ख़राब हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसको मैं लग कह रहा हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि आपने गाड़ी में जाते हुए कुछ ऐसी चीज़ें स्टडी की, वही चीज़ें बाई चांस आपसे पूछ ली स्टार्ट में ही, आपका इंप्रेशन बन गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्टअप हो गया. फिर आप तो इस तरह इंटरव्यू में चांस आज कहते हैं लक मैटर करती है. लेकिन टेस्ट में इतना मार्जिन लें कि इंटरव्यू की उस पर आप जाएँ ना, इंटरव्यू में आप इतना अच्छा नहीं भी करते 60%, फिर भी आप ध्यान में रखें 25 में से 60% जो बनते हैं उतने अपने मार्क्स लेने हैं. लेकिन बहुत अच्छा आप सिक्योर नहीं भी करते, आपने जो टेस्ट का मार्जिन है वो इतने लिए हुए, तो यहाँ से आपके पास चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह. देन एकेडमिक रिकॉर्ड तो आप खुद ही कर सकते हैं. 20% आपका
जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आप एसएससी से लेकर बीएस तक वो आप उसको खुद निकाल सकते हैं। टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय आपके जो उसमें उस पर्टिकुलर जो क्लास है ग्रेड उसके टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 20, तो आपका स्कोर निकल आएगा। देन हायर क्वालिफिकेशन अगर आपका एमएस है, पीएचडी है, एमफिल है, तो उसके 3 मार्क्स हैं, हिफ्ज़ कुरान के 3 है, और डिस्टिंक्शन अगर आपके बोर्ड में कोई पोजीशन है, आपने गोल्ड मेडल लिया और यूनिवर्सिटी में, उसके हर ग्रेड का एक एक नंबर है, ये टोटल 100 हो गया, राइट। दिस इज़ द फार्मूला, द क्राइटेरियन फॉर द सिलेक्शन ऑफ ऑल द लेक्चरर पोस्ट, राइट। नाउ कम टू इंग्लिश लेक्चर, द सिलेबस this year, especially this year, मैं इसलिए कह रहा हूँ, in the past it was the criteria, it was the prescribed syllabus that maximum weightage used to be given to literature. इंग्लिश में ज़्यादा weightage लिटरेचर को दिया जाता था पास्ट में, 60% लिटरेचर होता था, 60-70, और 30% लैंग्वेज होती थी। अब in modern era maximum importance is being given to language because especially in टेस्ट में आपकी जो कॉम्पिटेंस है वो लैंग्वेज में चेक की जाती है। आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है वो बताती है कि हाउ कॉम्पिटेंट यू आर, स्पेशली एज ए लेक्चर और ए टीचर। और आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी है तो आप ग्रामर में आपकी ग्रिप है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आपकी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पे आपको ग्रिप है, दैन यू आर सपोज टू बी अ गुड टीचर, अ कॉम्पिटेंट टीचर। लिटरेचर तो ये कि आप ज़्यादा आपने पढ़ा था और आपको हिस्ट्री जो आपकी जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, दैट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग, रट्टा है, तो वो आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं वो चीज़ें। इंटरव्यू में आपका लिटरेचर चेक की जा सकता है कि मॉडर्न एरा है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एमसीक्यू दैट हाउ मेनी प्लेज वर रिटन बाय शेक्सपियर, हाउ मेनी ट्रेजेडीज डिड शेक्सपियर राइट, कितनी ट्रेजेडी लिखी थी, तो फिगर्स आपने याद करने हैं, डेट्स हैं, तो ये व्हाट इज रोमांटिसिज्म इज दिस और दैट, आगे नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर क्रैमिंग, योर रोट लर्निंग, बट एज यू गॉट लैंग्वेज में आपकी कॉम्पिटेंस चेक होती है, आप कितने प्रोफिशिएंट हैं, आप कितने कहते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, लैंग्वेज में स्पेशली आपकी ये चीज़ें चेक होती हैं एज ए टीचर। तो इसलिए मॉडर्न एरा में पिछले 2-3 साल से ज़्यादा वेटेज दिए जाते हैं लैंग्वेज को। तो सिलेबस आपका इस साल का जो है वो इंग्लिश, ओवरऑल सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर एंड विकेबलरी और जनरल नॉलेज, ये टोटल आपके एरियाज़ हैं जिनमें से आपके 100 MCQs होंगे या 100 MCQs होते हैं, 100 मार्क्स होंगे या 400 मार्क्स होते हैं। कभी कभी नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर इफ़ 100 MCQs आर गिवन फॉर 100 मार्क्स, तो सम टाइम इट हैपन दैट देयर इज़ एनी नेगेटिव मार्किंग, आप 100 में से आप इतने मार्क्स लेते हैं। कभी कहते हैं 100 MCQs होते हैं, 400 मार्क्स होते हैं, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है कि आपके करेक्ट ऑप्शन के राइट ऑप्शन कैरीज 4 मार्क्स एंड 1 रॉन्ग ऑप्शन कैरीज 1 नेगेटिव मार्क। आपके एक राइट ऑप्शन पे 4 मार्क्स मिलते हैं आपको, और एक रॉन्ग ऑप्शन पे आपके 4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो दिस इज़ अ प्रिस्क्राइब syllabus for this year, keep this thing in mind. Now लैंग्वेज पे आते हैं, तो इसमें स्पेशली इंग्लिश ग्रामर 50% पोर्शन ऑफ योर कमिंग टेस्ट दैट विल कंप्राइज ऑफ ग्रामर, 50% MCQs ग्रामर से होंगे। ये एक आप कह सकते हैं कि मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो बता रहे हैं 50% ग्रामर होगी। ग्रामर में आपकी वो क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। तो 50% वेटेज विल बी गिवन टू लैंग्वेज उसमें ज़्यादा ग्रामर ही हो सकती है। तो लैंग्वेज में आपकी कुछ चीज़ें फोनेटिक्स से भी आ सकती हैं, कुछ चीज़ें लिंग्विस्टिक्स से भी आ सकती हैं। लिंग्विस्टिक्स आपको पता है, उसमें मॉर्फोलॉजी है, उसमें फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपकी सेंटेक्स से मिला के, और मैक्सिमम जो होगा वो ग्रामर में से होगा। तो 50% जो MCQs हैं, 50% पोर्शन जो है वो ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक्स इस साइड, लैंग्वेज वाली साइड से होगा, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स की साइड से होगा। ये सारे उसके इधर पार्ट्स हैं, राइट। और ग्रामर में से क्या होगा, you know that parts of speech from noun to all verb, adjective, adverb and gerund, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जेरेंट तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं गिनते, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
एंड एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिविजेशंस हैं, नरेशंस हैं, प्रपोजिशन है, फिर जेरेंड है, इन्फिनिटिव है, मॉडल्स हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रामर में आ जाती हैं. ग्रामर इज़ अ वास्ट ओशन. ग्रामर इज़ ऑल conceptual. I'm not talking about that traditional grammar that we used to be taught in the past. Past में जो हमें एक ट्रेडिशनल स्टाइल से ग्रामर पढ़ाई जाती थी, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थी वही, नाउन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बस. When in different sessions or different training sessions or different classes, when I write a sentence, I write a paragraph on the board, and I ask my students in my training to identify the noun. They can't. सिंपल नाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन दिस सिंपल पैराग्राफ. दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आवर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर. तो आपका वो जो कॉन्सेप्ट है टेंसेस का, टेंसेस हमें क्लियर नहीं है. हमें टेंसेस का जो फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट. द यूज ऑफ सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट हमें सेंस क्लियर नहीं है. कहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करने, कहाँ पे हमने सिंपल पास्ट यूज़ करने. मेरी वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे आप उसमें देखें. तो ये हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं है. इसलिए हमारे जितने NTS के टेस्ट होते हैं, ईटा टेस्ट होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामर का पोर्शन, अगर जो 12 साल से ग्रामर पढ़ रहे हैं, वैसे पूछें तो यूँ आती है ग्रामर, बट प्रैक्टिकली दे कांट अटेम्प्ट सच टेंसेस बेस्ड MCQs और पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड MCQs, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये बाकी चीज़ों चीज़ें छोड़ें. सिंपल ये चीज़ें मुझे पता. हमें ये नहीं पता एडवर्ब क्या है. एडवर्ब हमारे लिए ये एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. नो, दिस इज नॉट adverb. Adverb is a word that can modify all parts of speech except noun and pronoun. तो फिर हमने उसको एग्जाम्पल के साथ देखने वाला, ये चीज़ें डिटेल से डिस्कस होंगी. मैं आखिर में बताऊंगा कि आपने ये चीज़ें सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, कैसे सीखनी है. अगर आपने इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर इंग्लिश लेक्चर एट पोस्ट, तो आप 17 की पोस्ट के लिए अप्लाई आपने किया, तो आपने फिर उस लेवल की तैयारी भी करनी है, टेस्ट की भी और इंटरव्यू की भी. आपने गप लगा के आप इंग्लिश लेक्चर की पोस्ट, 17 की पोस्ट आप हासिल नहीं कर सकते. यू आर supposed to be well prepared. तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में जो मैंने बताई हैं, इनके अलावा भी ये सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में आ गई. देन 30% पोर्शन दैट विल बी ऑफ लिटरेचर. तो लिटरेचर में क्या होता है, आई एम गोइंग टू टेल यू, बट ये चीज़ रखें. अब लिटरेचर का पोर्शन टेस्ट में कम होगा, इंटरव्यू में हो सकता है. लिटरेचर में टर्म्स यूज इन इंग्लिश लिटरेचर, फॉर एग्जांपल फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, डिफरेंट जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है. दिस इज़ फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट दिस इज़ आयरनी, और दिस इज यू कैन से ऑक्सीमोरॉन और सिमिली और मेटाफोर. इन चीज़ों के बारे में हम सीख सकते हैं. एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री कभी आपकी जान नहीं छोड़ती इस तरह के टेस्ट में. तो हिस्ट्री में आपके जाहिर सी बात है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एंड योर स्टडी. आपने जो मुख्तलिफ ईराज हैं, मुख्तलिफ पीरियड्स हैं, मुख्तलिफ पोइट्स हैं, नावलिस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, उनके मुख्तलिफ पोइट्स हैं, उन्होंने कौन सी उनकी फ़र्स्ट बुक कौन सी थी, कितने राइटर ने कितने ड्रामे लिखे, फर्स्ट ड्रामा कौन सा था, लास्ट ड्रामा कितना, कौन सा ड्रामा कब लिखा. तो ये सारी जो चीज़ें वो फैक्ट्स एंड फिगर्स ही हैं सारे, तो आपने प्रैक्टिस करनी है सारी. बस वो 30% MCQ से होंगे. इसके अलावा डिफरेंट ईराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने बात की है, क्लासिकल रोमांटिक पोइट्स एंड डिफरेंट ड्रामाटिस्ट, डिफरेंट नावलिस्ट. तो ये सारा एक सिस्टमेटिक, बहुत सारी बुक्स ऐसी मिलती हैं डॉगर ब्रदर्स की या दूसरी, जिनमें MCQs बने बनाए होते हैं. तो मैं भी आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरा भी जो प्रेपरेशन प्लान चल रहा है, जिसकी नॉमिनल सी फ़ी है 6000 फ़ी पे करनी है आपने. आपको मैं एक ग्रुप में ऐड करता हूँ, और उसमें उसके बाद फिर आपकी जूम पे लाइव सेशंस भी हो रहे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं टेस्ट ले रहा हूँ. तो वह प्रॉपर आखिर में इस पर बात करूँगा, एक प्रॉपर तरीके से तैयारी हो रही है. Then the third portion, the third part, that's from vocabulary and general knowledge. Vocabulary and general knowledge. Sometime total vocabulary होती है 20 parts, sometime general knowledge plus vocabulary. 10 MCQs from vocabulary and 10 MCQs from general knowledge. तो ये 50-50 भी होता है, और इसमें टोटल वाला 20 है, इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, एक काम के दूसरा ज़्यादा. तो vocabulary में क्या होता है, you know that in vocabulary there are MCQs of synonyms, antonyms, idiom and phrases, and then general knowledge. Synonyms, you know that I have many videos on synonyms for vocabulary, many videos on antonyms. There are certain MCQs based videos, MCQs based tests. Synonyms, word having the same meanings, antonyms, word having opposite meanings.
फिर इस तरह ईडियम एंड फ्रेजेज हैं, मुख्तलिफ ईडियम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ईडियम दिया जाएगा, नीचे उसके मीनिंग्स होंगे कि दिस ईडियम मीन्स दिस और दैट, इस ईडियम का जो भी मतलब है तो आप उसमें से पूछा जाता है। इसी तरह फिर जनरल नॉलेज, कि जनरल नॉलेज में मेरी जो आपको सजेशन यही है कि आप करंट अफेयर्स जो है, स्पेशली आप करंट अफेयर्स पे जितना ज़्यादा हो सकता है करंट अफेयर्स पे आप वीडियोस देखें। मेरी वीडियोस भी हैं, और करंट अफेयर्स पे आप जो भी बुक मिलती है या कहीं भी आप उनको देखें, उस बुक से प्रैक्टिस करें, उनको पढ़ें। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ टॉक शोज़ हैं, उनको देखें तो आपकी उसके साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। तो जनरल नॉलेज के लिए आजकल मार्केट में बुक्स हैं, डॉगर ब्रदर्स है या बाकी बुक्स हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अब मैं ये तो था, दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश लेक्चर टेस्ट सिलेबस, प्रिस्क्राइब सिलेबस एंड कंपोजिशन ऑफ पेपर। एक बार फिर आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। मैं जनरली भी जैसे रिवाइज कर लेता हूँ कि 50% इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, इस तरह की चीज़ें होंगी, और 30% लिटरेचर और 20% जनरल एंड वोकैबुलरी, राइट। अब जो मेरा प्रिपरेशन प्रोसीजर है, तो मैंने स्टार्ट किया अपने मुख्तलिफ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मेरी चैनल पे मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिन्हें मैंने आपको बताया है कि कैसे आपने तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैंने जूम पे लाइव सेशंस भी लिए, 1-2 इंट्रोडक्टरी सेशंस हो चुके हैं। तो उन्होंने बताया है कैसे तैयारी होगी। एक नॉमिनल सी फ़ी रखी है 6000 फ़ी, वो आप लमसम भी पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। आफ्टर पेइंग द फ़ी यू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, अपने नाम के साथ, अपनी लोकेशन के साथ, और आपने जो फ़ी है उसकी कोई भी चीज़ भेजनी है। फिर उसके बाद आपके लाइव सेशन जूम पे होते हैं, एक ग्रुप बना हुआ, उसमें आपको मैं ऐड करता हूँ। आपके लाइव सेशन भी होंगे जूम पे, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके 2 टेस्ट वीक में। पहले मैं आपको सिलेबस असाइन करता हूँ जी। इस दफ़ा लाइव क्लास के बाद लाइव सेशन में मैंने डिस्कस किया फॉर एग्जांपल कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस पे बेस्ड जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं उसका टेस्ट होगा। मैं आपको वो लाइव क्लास भी लूँगा, मेरी वीडियोस भी हैं, वो मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, वो आप वॉच करते हैं, कहीं से किसी बुक से आप तैयारी करते हैं। उसके बाद फिर वो टेस्ट दिया जाता है। वो टेस्ट आप अटैम्प्ट करने के बाद वापस ग्रुप में भेजते हैं। ग्रुप में मार्किंग करके फिर आपको बताऊँगा कि इसमें आपके कितने मार्क्स हैं, आपका आपस में क्या कंपेरिजन कंट्रास्ट है, और फिर कोई अगर चीज़ डिफ़िकल्ट है आप क्वेश्चन करते हैं, उसकी फिर लाइव जूम पे ही हम टेस्ट को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगी कि ये एमसीक्यू था, इसमें ये ऑप्शन है, क्यों ऑप्शन है। तो ये एक आज की वीडियो थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने टेस्ट को कैसे तैयार करना है। इंग्लिश लेक्चर की पोस्ट है, आपने अप्लाई किया हुआ है, इसको आपने कैसे हासिल करना है, टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना है। जब आप टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा देन वी विल टॉक अबाउट इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे हम, मेरे साथ फुल एक्सपर्ट्स की टीम होगी, हम मॉक इंटरव्यू लेंगे आपके लाइव, आपको बिठा के, आप ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। ऐसे क्वेश्चन जो आमतौर पर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो, आप इस वीडियो को देख के अगर आपने मेरे उस प्रिपरेशन प्लान में आना है, प्रोसीजर में आना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको नज़र आ रहा है व्हाट्सएप नंबर पे, आप मुझे रजिस्टर कर, आप मेरे साथ हों, उस टीम में आएँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, आपकी तैयारी होगी तो इंशाल्लाह मैक्सिमम चांसेस होंगे आपकी सिलेक्शन के। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।